Okay, hello students, I am Navila Tariq. Today we'll be discussing the chapter A Truly Beautiful Mind, which is the chapter 4th of your Beehive reader. Okay, now this chapter is about the famous scientist named Albert Einstein. We'll read about his life, about his personal life, about his success, how he emerged as a successful and the most popular scientist of his times. Okay, before you read, who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm under 100 years ago. Now, what are the qualities? Actually, वो कैसी qualities हैं जो हमारे दिमाग में आती हैं जब हम वर्ड जीनियस सुनते हैं? बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो इंसान को जीनियस बनाती. These were the qualities that were present in Albert Einstein. He was a civil servant, and about 100 years ago he created history. He took the world by storm. मतलब पूरी दुनिया को उसने अपने काम से, अपने इंटेलिजेंसी से हिला दिया था. जैसे तूफ़ान आता है ना, so everything gets disturbed and everything gets shocked. Similarly, people well and were aware of his intelligence at that time. That was 100 years back. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, and energy. Now, in the summer 1905, when Albert Einstein was 26 years old, he published 4 ground-breaking papers, means 4 record-breaking papers, जिनकी सबसे ज़्यादा जिनको पसंद किया गया. कुछ उन्होंने बुक्स पब्लिश करी, जिसमें से एक थी लाइट के बारे में, which was about light. Then the motion of particles, what are the motion of particles in a substance, and the electrodynamics of moving bodies. Now, what is electrodynamics? This is a branch of science which actually deals with the effects that arrives from the interactions of electric current with magnets. Means जो effects होते हैं जब electric currents और magnet interact करते हैं आपस में, उसके जो effect निकलते हैं उसकी study को बोलते हैं electrodynamics of moving bodies. And the last, he wrote about energy. His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos. They transformed the name Einstein into a synonym for genius. उनका जब ये उन्होंने जितनी भी scientific theories develop करी थी related to all these topics, इनके जब newspapers में publish हुए तो उन्होंने हमेशा के लिए हमारी समझ को बदल दिया. हम कैसे इस एंटायर कॉस्मोस को समझने लगे, हर चीज़ को समझने लगे साइंटिफिक तरीके से. दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आइंस्टाइन. एंड नाउ आइंस्टाइन इज़ द नेक्स्ट वर्ड टू जीनियस. 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. Now, paragraph first. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed too much large. Okay, this paragraph means that Albert Einstein was born on 14th March 1879 and he was born in German. Without any indication that he was destined for greatness. मतलब जब वो पैदा हुए तो ऐसा किसी को भी इंडिकेट नहीं हुआ, ऐसा किसी को भी नहीं लगा उनके बचपन में कि वो किसी बहुत महान काम करेंगे बड़े होकर. ऑन द कॉन्ट्रेरी मीन्स उसी के साथ साथ मीन्स उसके ऑपोजिट वे में इनफैक्ट उनकी मदर को ऐसा लगता था दैट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. नाउ द मीनिंग ऑफ फ्रीक इज़, in the glossary it's given, a word used disapprovingly to talk about a person who is unusual and doesn't behave, look or think like others. मतलब एक ऐसा इंसान
जिसको नॉर्मली हम पसंद नहीं करते, इसलिए क्योंकि उसका बिहेवियर अनयूजुअल है, मतलब वो नॉर्मल लोगों से कुछ अलग हट के बिहेव करता है, अलग हट के दिखता है और अलग हट के रहता है. दैट पर्सन इज़ कॉल्ड अ फ्रीक. सो मीन्स कुछ ग्रेट करने की बात तो बहुत दूर की है, उसकी उनकी मदर को ऐसा लगता था कि बचपन में वो फ्रीक है. आई मीन समथिंग हु इज़ अब नॉर्मल, आई मीन नॉट एग्जैक्टली अ नॉर्मल पर्सन. टू हर हिज हेड सीम टू मच टू लार्ज. उनकी मदर को ऐसा लगता था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो सर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है. आई मीन देयर इज़ समथिंग अनयूजुअल, समथिंग यू नो typical about Albert that his mother used to feel for him. Now, come to paragraph second. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boring. Now, when he was 2.5 years old, that time also Einstein was not able to talk. और जब वो बोलना स्टार्ट किया उन्होंने 2.5 years के बाद, तो हर चीज़ दो दो बार बोलते थे, मतलब उनकी जो स्पीच थी वो क्लियर नहीं थी एज अ चाइल्ड. At the same time, Einstein was a very introvert kind of a person. Introvert means जो ज़्यादा किसी में घुलते मिलते नहीं हैं. वो दूसरे बच्चों के साथ खेलता नहीं था बिकॉज उसे समझ में नहीं आता था कि वो दूसरे बच्चों के साथ क्या खेलें. दैट वॉज द रीज़न हिज फ्रेंड्स और हिज क्लासमेट्स, हिज प्लेमेट्स यूज्ड टू कॉल हिम ब्रदर बोरिंग. ब्रदर बोरिंग बोलते थे उसको बिकॉज ही वॉज अ बोरिंग काइंड ऑफ अ पर्सन हु डिड नॉट यूज टू मिक्स अराउंड विथ फ्रेंड्स विथ हिज एज मेट्स. एट द सेम टाइम ही नेवर यूज टू प्ले विथ दैम. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. तो वो अपने आप ही खेलता रहता था. मीन्स वो खुद अपने साथ खेलता था, उसको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती थी खेलने के लिए. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही सेड टू हैव सेड, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. नाउ यू सी द चाइल्ड आइंस्टाइन वॉज, आई मीन वो ऐसे बच्चे थे कि उनको नॉर्मली मैकेनिकल टॉयज़ पसंद थे, मतलब जो खिलौने वो खेलते थे वो मैकेनिकल होते थे. इट नेवर यूज टू बी दो स्मॉल टॉयज़ विच आर नॉर्मली प्लेड बाय किड्स. और जब उनकी छोटी बहन पैदा हुई, उसका नाम था माजा, तो उन्होंने अपनी बहन को देख के ये बोला कि ओके शी इज़ फाइन बट उसके व्हील्स कहाँ हैं, मतलब पहिए कहाँ हैं, तो वो चलती कैसे है. दैट मीन्स मैकेनिज्म वॉज डीपली फिल्ड इन हिज माइंड एंड इन हिज थाट्स. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. उनके हेडमास्टर ने उनके फादर से बोला था कि आइंस्टाइन कोई भी प्रोफेशन चूज़ करे, मतलब कोई भी काम करे बड़ा होके, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज आइंस्टाइन विल नेवर बी अ सक्सेसफुल पर्सन. मतलब वो एज अ चाइल्ड ही वॉज सच अ फ्रीक, अ वेरी टिपिकल काइंड ऑफ अ पर्सन, एन इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन, कि लोगों को उन्हें देख के ऐसा लगता था दैट ही विल नेवर बी अ सक्सेसफुल पर्सन एट ऑल. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. Now, as a child, his mother wanted him to play violin. उनकी मदर चाहती थी कि वो violin सीखे. उन्होंने violin सीखा और लेटर वो एक एमेच्योर वायलिनिस्ट बने. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमेच्योर? दैट इज़ गिवन इन द ग्लॉसरी. डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट रेदर दैन एज अ प्रोफेशनल. एमेच्योर मीन्स नॉन प्रोफेशनल, मतलब हम कोई चीज़ सीखते हैं या कोई चीज़ करते हैं सिर्फ अपने शौक़ के लिए, ना कि उसको प्रोफेशन के लिए. सो ही बिकेम अ वायलिनिस्ट. ही न्यू हाउ टू प्ले वायलिन प्रॉपरली एंड ही मेंटेन दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ बट इन अ नॉन प्रोफेशनल मैनर. But Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. Now, Albert Einstein एक बैड प्यूपल, मतलब एक बुरे या एक डम स्टूडेंट नहीं थे. वो हाई स्कूल गए म्यूनिक में, जहाँ पे आइंस्टाइन की फैमिली मूव हुई थी 15 महीने पहले, और वहाँ पे उन्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिले ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. Now, हाई स्कूल उन्होंने वहाँ से किया जहाँ पे उन्हें अच्छे मार्क्स मिले थे, बट ही हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन. नाउ रेजिमेंटेशन का मीनिंग होता है, दैट इज़ गिवन इन द ग्लॉसरी, ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम. मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन.
रूल्स एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, किसी एक जगह का, उसको बोलते हैं रेजिमेंटेशन। उस स्कूल के जो लॉ एंड ऑर्डर थे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो बहुत ज़्यादा टफ थे या कुछ टिपिकल थे, जिसकी वजह से आइंस्टाइन की अक्सर उनके टीचर्स से क्लैश मीन्स लड़ाई होती थी, आर्ग्यूमेंट होती थी। So that was the reason that at the age of 15 he felt so stifle means suffocated, uneasy, इतना uneasy उन्हें feel होने लगा that he had to leave the school for his own good. Now come to paragraph number 5. The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left the son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which were more liberal than Europe. ना उससे एक साल पहले एल्बर्ट के पेरेंट्स ऑलरेडी मिलान शिफ्ट हो गए थे और उन्होंने अपने लड़के को म्यूनिक में ही छोड़ दिया था अपने रिलेटिव्स के पास, मीन्स आइंस्टाइन को उन्होंने अपने रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया था और वो मिलान शिफ्ट हो गए थे। बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन की एक विश थी कि वो स्विट्ज़रलैंड में पढ़े और वो उनको फाइनली हिज विश केम ट्रू एंड ही वॉज एबल टू मूव टू स्विट्ज़रलैंड and study over there, because the rules and regulations of Switzerland were not that very strict as compared to Munich. Now come to paragraph number 6. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. Now Einstein was very excellent in mathematics and was greatly interested in physics. और स्कूल ख़त्म होने के बाद he decided to study in the university in Zurich. Zurich की किसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो वहाँ पे पढ़ेंगे। बट साइंस ही वो एक अकेली ऐसी चीज़ नहीं थी जो इस डैशिंग यंग मैन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। Now, as you can see in the picture, Albert Einstein, when he was 21 years old, he looked quite handsome. They say he used to look dashing, that means he used to look handsome, and he has walrus mustache. Now walrus पता है वो जानवर होता है जो पानी में पाया जाता है, उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एक्चुअली उसको उन्होंने उसके एल्बर्ट आइंस्टाइन की मुस्टैच उनकी मूँछों से कंपेयर किया। उनकी मूँछें इतनी घनी एंड इट वॉज घनी थी दैट इट यूज टू लुक लाइक the body parts of walrus, that animal, that sea animal. Okay, so साइंस के अलावा भी उन्हें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अपील कर गई, बहुत ज़्यादा पसंद कर गई। अब वो क्या था? Come to paragraph number 7. Now we will learn about that thing that appealed आइंस्टाइन, मतलब कौन सी वो चीज़ थी जो आइंस्टाइन को सबसे ज़्यादा साइंस के बाद जो दूसरी चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आई। Come to paragraph 7. He also felt a special interest in a fellow student, Meleva Marik, whom he found to be a clever creature. Now, साइंस के बाद उन्हें दूसरी चीज़ क्या अच्छी लगी? वो थी उनकी साथ में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट जिसका नाम था मेलेवा मारिक। नाउ शी वॉज अ गर्ल एंड आइंस्टाइन डीपली लाइक्ड हर। उनको आइंस्टाइन को ऐसा लगता था कि मेलेवा मारिक एक बहुत क्लेवर लड़की है। दिस यंग Serb means the person who's coming from Siberia. This Serb had come to Switzerland because the University of Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. Now this girl, ये जो मेलेवा मारिक थी, ये स्विट्ज़रलैंड इसलिए आई because the university in Zurich, because Zurich में जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो ज़्यादातर वहाँ पे लड़कियाँ क्वालिफाई नहीं करती थी और वो लोग लड़कियों को डिग्रीज नहीं देते थे, बिकॉज वो पुराना ज़माने की बात है। ओके, आइंस्टाइन सॉ इन हर एन ally against the Philistines, those people in his family at that university with whom he was constantly at odds. Now this full paragraph number 7 is important, students. You can mark it as important, especially this line that Einstein saw in her an ally, means आइंस्टाइन को उस लड़की में एक दोस्त दिखाई थी, एक क्लोज कंपेनियन दिखाई दिया अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। नाउ फिलिस्टीन्स कौन थे? जैसे ग्लॉसरी में दिया है, अ वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक।
एक्चुअली वो लोग जिनको आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक नहीं पसंद होता है, उन लोगों को बोला करते थे उस टाइम पे फिलिस्टीन्स। और ये फिलिस्टीन्स वर्ड एक डिसअप्रूविंग मैनर में बोला जाता था, मीन्स एक नेगेटिव मैनर में बोला जाता था, एक कमेंटिंग मैनर में बोला जाता था उन लोगों को जिनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक में। और ऐसे लोगों से आइंस्टाइन की नॉर्मली कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे। कॉन्स्टेंट ऑड्स मीन्स, ऑड मतलब फाइट्स, कांस्टेंट मीन्स लगातार किसी न किसी बात पे आर्ग्यूमेंट या बहस होती थी आइंस्टाइन की। और वो इस टाइप के फिलिस्टीन्स काइंड ऑफ पीपल उन लोगों को पसंद नहीं करते थे। और उनकी ही सोच जैसी सोच थी मेलेवा मारिक की। सो ही फाउंड अ क्लोज फ्रेंड इन मेलेवा। The couple fell in love. Letters survive in which they put the affection into words mixing science with tenderness. Now उन दोनों में लेटर्स एक्सचेंज होने लगे, वो एक दूसरे को लव लेटर्स लिखने लगे बिकॉज उस टाइम पे कम्युनिकेशन का और कोई ज़रिया नहीं था। और वो लोग अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में लिखने लगे उन लेटर्स में। और जब वो वर्ड्स लिखते थे अफेक्शन, प्यार भरे, तो उसमें साइंस भी होती थी, एट द सेम टाइम अफेक्शन भी होता था। क्यों? क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट थे, साइंटिफिकली इंटरेस्टेड थे बहुत ज़्यादा साइंस में, तो उनकी जो लैंग्वेज भी थी ना वो भी साइंटिफिक थी। Wrote Einstein, "How happy and proud I shall be when both have brought a work on relativity to a victorious conclusion." Now Einstein अपने लव लेटर में लिखते हैं मेलेवा को, "How happy and proud I shall be", कि मैं कितना खुश और प्राउड होऊंगा जब हम दोनों, when we both have brought a work, मतलब जब हम दोनों अपने इस रिलेशनशिप को बहुत सक्सेसफुल कंक्लूजन में तब्दील करेंगे। आई मीन व्हेन वी विल ब्रिंग आवर रिलेशनशिप टू अ सक्सेसफुल पॉइंट, दैट इज़ व्हेन वी विल गेट मैरिड। That is the happiest conclusion of every relationship is marriage. So he is not writing the letter in a very tenderly mixed affectionate words, rather than he is using scientific terms to prove love and prove his feelings for Meleva. तो वो बोलते हैं कि हम सबसे ज़्यादा खुश तब होंगे जब हम अपने रिलेशनशिप को एक सक्सेसफुल, एक विक्टोरियस कंक्लूजन पे लेके आएंगे। ओके, come to paragraph 8. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. Now, at the age of 21, Albert Einstein ग्रेजुएट हो गए थे यूनिवर्सिटी से, पर उनकी कोई कहीं जॉब नहीं मिली थी। उस टाइम वो नॉर्मली या तो प्राइवेट लेसन्स देते थे या टीचिंग में असिस्ट करते थे। फाइनली उनको 1902 में एक जॉब मिली एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन पेटेंट ऑफिस। नाउ पेटेंट का मीनिंग क्या होता है? अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट्स ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो जब कोई इन्वेंट करता है कोई चीज़ तो उसको हम किसी तरह का राइट देते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट के थ्रू हम उसको वो राइट्स प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं पेटेंट। और पेटेंट ऑफिस वो ऑफिस है जहाँ पे आप ये डॉक्यूमेंट्स की यू प्रोड्यूस दीज डॉक्यूमेंट्स फॉर द इन्वेंटर्स फॉर द इन्वेंशन। ओके, सो वो वहाँ पे जॉब करने लगे। While he was supposed to be assessing other people's invention, एक्चुअली वो उस ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट थे, वो दूसरे लोगों के इन्वेंशंस को में हेल्प करते थे। मीन्स जो दूसरे साइंटिस्ट थे, जो इनसे सीनियर साइंटिस्ट थे, वो जो भी इन्वेंशंस करते थे एल्बर्ट आइंस्टाइन उनको हेल्प करते थे उनके इन्वेंशंस में। बट एट द सेम टाइम ही वॉज क्रिएटिंग एंड लेबोरियसली कलेक्टिंग आइडियाज़ फॉर हिज ओन इन्वेंशंस। लेकिन उसी टाइम पे वो अपने ख़ुद के इन्वेंशंस के लिए आइडियाज़ कलेक्ट कर रहे थे।
और वो आइडियाज़ वो कहाँ कलेक्ट करते थे? वो सारे आइडियाज़ अपने डेस्क के एक ड्रॉर था उसमें कलेक्ट करते थे, और अपने डेस्क ड्रॉर को वो बोलते थे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स। मतलब अपने डेस्क की ड्रॉर में उनके इतने सारे आइडियाज़ थे, इन द फॉर्म ऑफ पेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन, इन द फॉर्म ऑफ प्रूफ्स। मतलब इतने सारे उनके पास सामान था अपने इन्वेंशन के लिए, कि वो अपनी उस ड्रॉ को बोलते थे ब्यूरो ऑफ theoretical physics. Now this Bureau of Theoretical Physics, this term is important, okay, which is in the inverted commas. Now come to paragraph number 9. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula, which describes the relationship between mass and energy. Now this paragraph number 9 is also very, very important. He published a paper in 1905, and which included Einstein's special theory of relativity. 1905 में आइंस्टाइन की एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी जो पब्लिश हुई, जिसके अकॉर्डिंग टाइम और डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट? मेजर्ड इन इटसेल्फ, नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स. मतलब टाइम और डिस्टेंस आप अपने आप में ही मेजर कर सकते हैं, किसी और चीज़ से उसे रिलेट करके मेजर नहीं कर सकते. उन्होंने ये भी बताया था कि अगर हम दो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, मतलब दो हम घड़ी लें जो बिल्कुल करेक्ट हों, परफेक्ट हों, एक्यूरेट हों, और अगर हम उन्हें कुछ टाइम के बाद रोकें और देखें कि उनका टाइम सेम है कि नहीं, तो दोनों का टाइम सेम नहीं निकलता. वन क्लॉक will work in a faster manner as compared to other clock. तो टाइम जो होता है उसमें वेरिएशन हमेशा रहेगा. अगर हम दो क्लॉक को इकट्ठा भी स्टार्ट करेंगे तो भी उनका लेटर ऑन टाइमिंग्स जो हैं उसमें चेंजेस रियलाइज होंगे. According to this theory, the most famous formula was described, that means E is equals to mc square. That is the relationship between mass and energy. So ये जो E is equals to mc square का famous formula है, which describes the relationship between mass and energy. Actually this formula was who came up with this formula? Einstein came up with this famous formula, where E stands for energy, m for mass, and c for the speed of light in the vacuum. Now come to paragraph number 10. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unrevealing. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing studies, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. Now, जिस टाइम आइंस्टाइन अपनी न्यू डिफरेंट थ्योरीज़ के साथ काफ़ी सक्सेसफुल होते जा रहे थे, और वो फिज़िक्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थे उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, उसी टाइम उनकी प्राइवेट लाइफ जो थी वो अपने आप फेल होती जा रही थी. उनकी प्राइवेट लाइफ मीन्स उनकी पर्सनल लाइफ. अनरिवेलिंग मीन्स स्टार्टिंग टू फेल. एल्बर्ट को मिलेवा से शादी करनी थी अपनी पढ़ाई के बाद, लेकिन एल्बर्ट की मदर इस चीज़ के अगेंस्ट थी. उन्हें ऐसा लगता था कि मिलेवा एल्बर्ट से बड़ी है, बिकॉज मिलेवा वॉज एक्चुअली 3 years ओल्डर देन आइंस्टाइन. सो उनको लगता था कि 3 years का डिफरेंस है मिलेवा में. मिलेवा 3 साल बड़ी है, जो कि बहुत ज़्यादा एज होती है. एक्चुअली उस टाइम पे लोगों की सोच ऐसी थी, ऑल्दो आज भी इस चीज़ को माना जाता है दैट अ गर्ल शुड बी यंगर देन द बॉय. ऑल्दो डजंट मेक अ डिफरेंस, बट स्टिल इट इज़ कंसिडर्ड टुडे ऑल्सो इन दिस वे. और उस टाइम पे तो सोच और ज़्यादा लोगों की कंजर्वेटिव थी, इसलिए 3 साल का डिफरेंस भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा था. एंड एट द सेम टाइम उनकी मदर को ये भी लगता था कि मेलेवा भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एंड शी इज़ ऑल्सो जस्ट लाइक अ बुक
as Einstein is. जैसे Einstein intelligent हैं, always in studies, always in his inventions and his professional life. Similarly Mileva भी बहुत ज़्यादा intelligent है. तो जब दोनों same nature के होंगे तो शायद उनके बीच में अच्छे से ना बने, because एक वो theory है ना, like रिपेल्स ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. जब हम मैग्नेट के सेम पोल्स को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं जुड़ते, वो अलग हट जाते हैं, बिकॉज ऑपोजिट अट्रैक्ट्स एंड सिमिलर रिपेल्स. सो अगर आप दोनों एक से होते हैं तो शायद आप में उतनी ना बने. सो दैट वॉज द रीज़न द मदर, Einstein's mother didn't like Mileva. So Einstein had to put the wedding off. Put the wedding off means उन्हें अपनी wedding कुछ टाइम के लिए कैंसिल करनी पड़ी. Come to paragraph number 11. The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. Now finally 1903 में उन्होंने शादी करी और उनके 2 बच्चे हुए. But after a few years later the marriage faltered. Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. Now, this paragraph 11th is also quite important because paragraph 10th and paragraph 11th shows the personal life of Einstein. मतलब अगर एक question आए, throw light on the personal life of Albert Einstein या Albert Einstein की personal life के बारे में कुछ लिखो. So you will be writing about the paragraph number 10th also and paragraph number 11th also. Okay. So 1903 में कपल्स उन लोगों ने शादी करी, उनके 2 बच्चे हुए. बट आफ्टर फ्यू ईयर्स द मैरिज फॉल्टर्ड मीन्स उनकी जो शादी थी, उनका रिलेशनशिप था, वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था. वाई? बिकॉज मिलेवा ऑल्सो वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल. शी वॉज ऑल्सो वेरी एम्बिशियस, इंटेलेक्चुअली एम्बिशियस. मतलब वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी कि उनके भी अपने सपने थे, उनका भी अपना एम्बिशन था, एम था कुछ करने का. बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें हाउस वाइफ बनना पड़ा. सो दैट्स वाई शी वॉज बिकमिंग डिससेटिस्फाइड एंड अनहैप्पी. और उस डिससेटिस्फैक्शन की वजह से उनके बीच में कॉन्स्टेंटली लड़ाई होती रही एंड फाइनली दे गॉट डाइवोर्स्ड इन 1919. उस द सेम ईयर, उसी साल आइंस्टाइन ने दूसरी शादी करी अपनी कज़न एल्सा से. ओके, नाउ कम टू paragraph 12. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed that his work as a scientific revolution. Now, जैसे उनकी लाइफ के नए चैप्टर्स खुलते गए उनकी लाइफ में, पहले उनकी शादी हुई, देन डाइवोर्स, देन अगेन ही गॉट मैरिड टू अनदर गर्ल. सिमिलरली उनकी फेम, उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो भी दिन ब दिन बढ़ती रही. उन्होंने 1915 में एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रोवाइड करी लोगों को, which said interpreted a lot about gravity, जिसने ग्रेविटी के बारे में बहुत कुछ हम लोग सबको सिखाया. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. 1919 में एक solar eclipse हुआ जिसने ये प्रूव कर दिया कि उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट रिगार्डिंग ग्रेविटी. आइंस्टाइन ने पहले ही एडवांस में एक्चुअली एक कैलकुलेशन कर लिया था. वो कैलकुलेशन क्या था कि लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स, जो हमारे आसमान में जो स्टार्स हैं उनसे जो लाइट निकलती है वो ग्रेविटी से होते हुए हम तक पहुंचती है और उसके बाद वो वापस डिफ्लेक्ट होती है. रिफ्लेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट से लाइट दूसरे ऑब्जेक्ट पे पड़ना और फिर उस ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस जाने को बोलते हैं डिफ्लेक्शन. तो ग्रेविटी के थ्रू ये रिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन कैसे होगा, इसका कैलकुलेशन जो है वो आइंस्टाइन पहले ही कर चुके थे. एंड दिस वर्क ऑफ हिज was proclaimed as scientific revolution. मतलब उनके इस काम को न्यूज़पेपर्स ने और पूरी दुनिया ने साइंटिफिक रेवोल्यूशन बोला. मतलब एक ऐसा रेवोल्यूशन, एक ऐसा बदलाव
जो साइंस की फील्ड में आया है, जिसकी वजह से बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो सकते हैं. Okay, come to paragraph 30. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. Now, Einstein को Nobel Prize मिला in physics in the year 1921. He was showered with honors and invitations. He was honored all over the world. He was called in conferences, in meetings, in parties. उनको invite किया गया, and at the same time he was lauded by the press. Means press, that is media, kept on appreciating his work and kept on giving him immense importance. Okay students, I will stop my chapter over here. We'll discuss the remaining chapter in the next class. Thank you.